Hello students, welcome back to the Tantray physics classes. Presently we are learning collisions. I have delivered 2 lectures on the collisions and today's lecture is on the problem set. How we can use our formulas that we have developed, that we have derived in many cases, or we have remembered them, or we have understood the formulas. How we can use them in real-time cases, in objectives, in problems. How can we use them to solve the problems or the objectives? Okay. If I want to remind you about the equations, that elastic collision is one in which the kinetic energy is conserved and momentum is conserved. Inelastic collision is one in which kinetic energy is not conserved but momentum is conserved in all types of cases. और फिर मैंने आपको कहा कि एक body one dimensional collision, in one dimensional collision 2 bodies before the collision and 2 bodies after the collision move in the same straight line. And I have given one more technique to remember that if the velocity of the 2 bodies along the line joining the 2 centers of the 2 bodies, if the velocities of the 2 bodies lie along that line, then the collision will be head-on or one dimensional. And then I have also discussed 2-dimensional collisions with you, in which the 2 bodies do not move in the same straight line. They go in x and y directions. They go in after the collision they go in 2 different directions, but that is a 2-dimensional collision. Anyway, let me start doing some problems, some objectives, so that you can use those equations which we have learned, which we have developed. Now final velocity of the first body after the collision, 1-dimensional collision. Final velocity of the second body after the collision, V1 and V2 expressions. So those we have learned. You can watch the lectures again and try to understand the formula, and then how to apply those formula in real-time cases in these problems and objectives. Okay. Problem number one. Mostly the problems are in my head, and because I have an experience doing these problems in my classes, offline classes. Therefore, in some cases the answer will not be that clear because I make arbitrary problems. So we should not worry about that. We should go to we should try to understand the concept behind the problems. Not that we should get a very clear answer, but I will try to get the answers very clearly and discreetly. But in some cases the answers will not be that clear. Anyway, so the problem that I am going to make is, I want to make a symbolic representation of the problem, that is something like this. It's a body. Okay, let me say its mass is 3 kg. Mass is 3 kg. 3 kg. And it moves forward with a velocity of 2 meters per second. The body moving. It makes a collision with this body. But this body is connected to one more body through a spring, and it is mass is 3 kg. It is mass is 6 kg. This makes elastic collision with this, and it will move forward, and the spring will get compressed, and that compression will create a force on the 6 kg, and then 6 kg mass will also move in the forward direction. This will hit this body. It will be moving in the forward direction with some velocity, and this will get compressed, and the compression of the spring will create force on this and this. But compression of the spring will create force on 6 kg in the forward direction and on this in the backward direction. With the result, its velocity will decrease, but its velocity will increase. And after some time, both the bodies 3 and 6 will move with the same velocity, but at that time, the spring will have the maximum compression. The spring will have a maximum compression after a little time. When this will move, it will compress, this will also move, and finally, this will get a maximum compression, and from there onwards, ये फिर से stretch होना शुरू करेगा. Lekin there will be a maximum compression, then stretching will take place. It will the spring will start stretching, and finally
what will happen? But we have the problem with us is that what is the maximum compression? What is the maximum compression of, or what is the maximum energy stored in this spring? इसमें कितना maximum energy store हो सकता है? But that is all. What is the maximum energy stored in the spring? In the spring. ये हमारा क्वेश्चन है. When this object hits this object, that's all. Maximum compression means when it is being hit, it will start moving the forward direction and it gets compressed. But at the same time, this will also move in the forward direction. A time will come when both 3 kg and 6 kg will move with the same velocity. At that time, this will have a maximum compression. उसके बाद इसका velocity ज्यादा होगा, इसका कम. There's a mismatch of the two velocities and it will start stretching again. But maximum compression means it will store the maximum energy, potential energy of the spring, as you know, 1/2 kx square, k stretch square या k compression square. जब compression सबसे ज्यादा होगा इस spring में, तभी energy सबसे ज्यादा store होगा इस spring में. हमें वो position लेना है. अच्छा, तो what are the possible equations that we are going to use? हमारे पास दो ही इक्वेशंस है. कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, conservation of energy, total energy, because spring energy is also conservative, conservation of total energy, and conservation of moment. That is something with us. So first of all, I want to conserve energy. Conservation of energy leads to conservation of energy. क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या है इसका एनर्जी बिफोर द कोलिजन? 1/2. ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी Ki is equal to Kf. नॉट ओनली Kf फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब ये कंप्रेस हो जाएगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो उस वक्त उसका भी एनर्जी होगा E, पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. ऑफ कोर्स अगर आप E लिखना चाहते हैं तो वो 1/2 kx स्क्वायर के बराबर है. बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट k and x, but bothered about the energy stored in the spring when it has a maximum compression. तो अब मैक्सिमम कंप्रेशन पर मैं क्या कंडीशन है? मैक्सिमम कंप्रेशन में ये कंडीशन है कि इस 3 kg और 6 kg का जो वेलोसिटी है वो सेम है. दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन. अब देख लो, ये बॉडी है, इट मूव्स, व्हेन इट मूव्स this gets compressed, but it also begins to move, but its velocity is more, so compression is still going on. Compression. But when two bodies have the same velocity, the compression is maximum. तो उसके बाद जब इसका velocity बढ़ जाता है तो stretching takes place. Mismatch of the two velocities will get the stretching. But maximum compression पर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा. अच्छा, तो क्या है पहला काइनेटिक एनर्जी इसमें? 1/2, m is 3, v square is 4, 2 square, that is 4. इसका काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 m इसका मास, that is 3. इसका वेलोसिटी, ओके, लेट मी सपोज v स्क्वायर, प्लस उसका काइनेटिक एनर्जी 1/2 6, उसका वेलोसिटी v स्क्वायर, प्लस एनर्जी E. We don't know what is V. What is the velocity of the two bodies? But of course they have the same velocity at that position when the compression is maximum. लेकिन हमें ये पता नहीं ये velocity कितना है. अच्छा, तो दूसरा जो इक्वेशन है जो हम यूज करना चाहते हैं, that is conservation of momentum. Conservation of momentum. उसमें क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है? उसमें है, उसमें initial momentum. What is the initial momentum here? That is okay. That is Pi is equal to Pf. What is Pi? That is 3 into 2. What is Pf? क्या है मास इसका? क्या है इसका मास? 3 plus 6 टोटल मास इनटू सेम वेलोसिटी, बिकॉज इसका और इसका वेलोसिटी सेम है. आप ये भी लिख सकते हैं 3v plus 6v. आप दोनों का मास ऐड करके v लिख सकते हैं. तो यहां से v मिलेगा हमें, v is equal to 6/9, that is 2/3.
ये 2/3 का वेलोसिटी, तो यहां हम ये सबस्टिट्यूट कर सकते हैं और फिर हमें ये मिलेगा। सो लेट मी डू इट। ओके, अच्छा, तो इट इज, ये इक्वेशन में लेना चाहता हूं अब। इट इज 1/2, ये 2 2 4 होगा, 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3, ये v स्क्वायर का सबस्टिट्यूट कीजिए आप, दैट इज 4/9 प्लस ये है इसका जो हो जाएगा 3v स्क्वायर, दैट इज अगेन 4/9 प्लस e। ठीक है, ओके। नाउ 2 2 3, 6 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3 प्लस e। इट इज 6 इज इक्वल टू 6/3 प्लस e। तो e किसके बराबर है? 6 माइनस 6/3, that's e is equal to, it is 2, it is 6 minus 2 is equal to 4 joules. That's all. So when it hits it, it compresses, and final compression जब इसका होता है, दो bodies have the same velocity, उस वक्त इसका जो energy होता है that is 4 joules. That's all. एक क्वेश्चन तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका ये एंगल जो है वो थीटा है, और यहां से एक बॉडी फॉल होता है थ्रू द हाइट h। A body falls from a height h on an incline, मैं लिखूंगा a body falls on the incline from height h, after hitting the incline it moves horizontally to the ground. After rebounding, it moves horizontally. It moves horizontally. ऐसे कुछ यहां हिट किया और हिट करने के बाद ऐसे चला गया, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? ई निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें ई निकालना पड़ेगा, ई। और आपका ई का डेफिनेशन पता है, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिसीड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u2 माइनस u1। लेकिन यहां तो सरफेस रेस्ट में है, इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी इसका ऑब्जेक्ट का, लेकिन इसका तो जीरो है, तो ये हमें मिलेगा v2, फाइनल वेलोसिटी इसका जो v2 है, यहां जो फाइनल वेलोसिटी v2 है, और इनिशियल वेलोसिटी हिट करने से पहले जो है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी जो इसका है दैट इज u2। सो इट इज v2 माइनस u2। लेकिन आप देखिए, इस आई शुड नॉट राइट u2 बिकॉज दीज आर नॉट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं है। तो लेकिन बेस फॉर्मूला हमें यही है, ये हमारा बेस फॉर्मूला है, u2 बाई u, वेलोसिटी ऑफ रिसीड बाई वेलोसिटी ऑफ, यहां से हमें वेलोसिटी ऑफ रिसीड और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना पड़ेगा, बस दैट इज ऑल। लेकिन फॉर्मूला यही है। लेकिन यहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, रिसीड क्या है, वो देखना पड़ेगा अच्छी तरह से। We have to understand that what is the velocity of approach and what is the velocity of recede.
It is not that this velocity is the velocity of approach or this velocity is the velocity of recede. वो बहुत अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा हमें. चलो एक देख लीजिए, इसको लाइन डाल दीजिए. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया, राइट. तो चलो अगर इसको ये 90 माइनस थीटा है, अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है, तो डोंट यू थिंक दैट दिस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v1. इट इज वेलोसिटी ऑफ दिस वेलोसिटी v1 इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू द वॉल, टू द रिंग लाइन. इस v1 के दो कंपोनेंट्स, ये कीजिए कंपोनेंट और ये कीजिए कंपोनेंट. ये कंपोनेंट अप्रोचिंग वेलोसिटी है जो मैंने आपको पहले भी बताया है. तो अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक. और अब ये वाला वेलोसिटी क्या है? दिस वेलोसिटी इज v1 cos ऑफ थीटा. इट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो रिसीड वेलोसिटी क्या है? रिसीड वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के दो पीसेस जब करोगे तो यहां से कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलेगा? v2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस, दो होगा v2 sin थीटा. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये है, तो वेलोसिटी ऑफ रिसीड ये है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अगर ये v1 समझो, ये v1 समझो, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू द इंक्लाइन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिसीड फ्रॉम द इंक्लाइन अवे. दिस कंपोनेंट, दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ रिसीड. वो मैंने पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में समझाया, आप उसको यू कैन रिविजिट दैट कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ व्हाट शुड आई राइट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? वेलोसिटी ऑफ रिसीड, दैट इज दिस, बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज दिस. सो वेलोसिटी ऑफ रिसीड इज v2 sin थीटा by v1 cos थीटा. ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इक्वेशन नंबर 1. लेकिन अब v1 और v2 का मसला है. वो मसला ये है, देखो, क्योंकि इंक्लाइन जो है दैट विल क्रिएट फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन. अगर ये जब ये हिट करता है तो फोर्स इस डायरेक्शन में आता है. दिस इंक्लाइन क्रिएट्स फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बट इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन. इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन का मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, इस डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं होगा. जो हॉरिजॉन्टल होगा इस डायरेक्शन का मोमेंटम, इस डायरेक्शन का मोमेंटम जो है बॉडी का वो चेंज नहीं होगा आफ्टर द कोलिजन. लेकिन इस डायरेक्शन का मोमेंटम जो है वो चेंज होगा क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है. बिकॉज फोर्स चेंजेस मोमेंटम, दिस फोर्स विल चेंज दिस मोमेंटम. इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जीरो है क्योंकि दिस फोर्स विल नॉट हैव कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, देयरफॉर मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. तो उसका क्या लिखेंगे? इस डायरेक्शन का मोमेंटम जो है ये वाला, दैट इज m v1 cos थीटा. ये वाला मोमेंटम कंजर्वेशन लिखूंगा, pi इज इक्वल टू pf इन द एक्स डायरेक्शन. अगर ये एक्स डायरेक्शन लिया जाएगा, मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन द एक्स डायरेक्शन बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन द एक्स डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन. क्यों? इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है. फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता है उस डायरेक्शन का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. That is the concept, Newton's concept. अच्छा, तो because fx is equal to 0, तो बताइए p i x किसकी है? ये है मोमेंटम, वर्टिकल मोमेंटम, और ये हॉरिजॉन्टल मोमेंटम u. तो व्हाट इज दैट? mv1 ओके sin थीटा. ये वाला मोमेंटम वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, इज इक्वल टू mv2 ये हुआ, ये मोमेंटम, ये हुआ cos कंपोनेंट, mv2 cos थीटा. इस मोमेंटम का ये वाला कंपोनेंट, m gets cancelled, so what's v1 by v2? Yeah, v2 by v1, v2 by v1, that is sin theta by cos theta. इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन सेकंड 1 को यहां डाल दो. तो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके बराबर है? v2 by v1 is this, and already it is this, so it is sin theta by cos theta into again sin theta by cos theta. तो इसमें हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा पे कॉस कर दैट इज tan स्क्वायर थीटा। आंसर। ये बहुत समझने की बात है, यहां पर ये मोमेंटम क्यों कांस्टेंट रहा बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप वॉल पर लगाते हो तो वॉल गिव्स फोर्स, एनी प्लेन गिव्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मोमेंटम हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन इज कांस्टेंट, इज द वर्टिकल मोमेंटम दैट विल चेंज बिकॉज ऑफ दैट फोर्स। ओके, ये खत्म हो गया, इसको कॉपी कीजिए आप। थर्ड, इट्स ए स्फीयर। यहां पर प्रॉब्लम बनाऊंगा मैं। इट्स ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, इट्स ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, रेडियस 2r, सेम मटेरियल, इसका वेलोसिटी समझो u, एंड इट हिट्स इट। This sphere hits this sphere and there's a collision, and after the collision they move in the forward direction like this. They move in the forward direction. What's the coefficient of restitution? What is the coefficient of restitution? What is the coefficient of restitution? ये इसको it is at rest. It is at rest. तो coefficient of restitution किसके बराबर है? तो इसका मास समझो m है, इसका मास कितना होगा? 2r का रेडियस है, बड़ा है, मटेरियल सेम है, डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी सेम। बताइए, अगर ये रेडियस r है, सॉलिड है ये, और ये रेडियस 2r का सॉलिड है, अगर इसका मास m है तो इसका मास कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा 8 टाइम्स, बिकॉज व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम तो है 4/3 पाई r क्यूब, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। अगर ये वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा? वो तो होगा 2r का क्यूब, सो 8 टाइम्स वॉल्यूम एज दिस। तो इसका मतलब इसका मास 8 टाइम्स बनेगा, जितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा उतना मास बढ़ेगा, बिकॉज मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी अगर दोनों का सेम है, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना मास भी बढ़ेगा। तो अगर इसका रेडियस r है, इसका 2r है, उस हिसाब से इसका मास होगा 8m। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है। आफ्टर द कोलिजन हमें देखना होगा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या किया जाए? यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिसीड by velocity of approach, that is u minus, इसका तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u minus 0, that is u. So v2 minus v1 by u, ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लेकिन हमें ये नहीं पता कि v2 क्या है, v1 क्या है, वो सब पता नहीं है। आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, दैट वन v1 इज इक्वल टू व्हाटएवर, v2 का भी आपको फॉर्मूला पता है, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो v1 और v2, और बाद में यहां सब शुरू करके हो सकता है। लेकिन लेट मी गो टू द बेसिक्स। बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है पता है? ये कैन यू यूज दैट फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन? व्हाट इज मोमेंटम कंजर्वेशन? यस, मोमेंटम कंजर्वेशन इज मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लिखूंगा मोमेंटम कंजर्वेशन? एम यू इनिशियल मोमेंटम प्लस उसका 0 इज इक्वल टू इसका फॉरवर्ड मोमेंटम mv1, फिर उसका फॉरवर्ड मोमेंटम m8mv2। इट इज मोमेंटम प्लस इट इज मोमेंटम इनिशियली बिफोर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन इसका वेलोसिटी v1 हो गया, ये मोमेंटम, उसका वेलोसिटी v2 हो गया, ये मोमेंट। तो m कैंसिल कीजिए तो आपको मिलेगा u इज इक्वल टू v1 प्लस 8v2। ये है हमारे पास एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमें काइनेटिक एनर्जी से मिलेगा। we can find the second equation from kinetic energy, but why not use v1 and v2 separately? What is अगर u2 0 है, what is v1? v1 किसके बराबर होगा जरा बताइए? v1 is m1 minus m2 by m1 plus m2,
ये वाला u प्लस 0, क्योंकि सेकंड पार्ट इज 0, उसमें u2 आता है, वो 0 है। तो हो गया v1 हमारा मिल गया, दैट इज v1 इज इक्वल टू व्हाट इज m1, दैट इज m माइनस 8m बाय 9m इंटू u, दैट इज माइनस 7 बाय 9u। ये हमारा v1 हो गया। अब v2 बताइए, v2 किसके बराबर होगा? v2 इज इक्वल टू, चलो यहां पर v2 इज इक्वल टू बताइए, v2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1 बाय m1 प्लस m2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटू व्हाट, इंटू u प्लस सेकंड पार्ट 0 है, क्योंकि सेकंड पार्ट में इसका वेलोसिटी आता है, वो 0 हो गया। जो लिखना है उसके बाद 0 ही बनेगा। v2 इज इक्वल टू 2m बाय m प्लस 8m इंटू u, दैट इज v2 इज इक्वल टू 2m, दैट इज 9m, 2 बाय 9u। तो v2 भी मिला आपको और v1 भी आपको मिला। तो अब आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल सकते हैं। इस v2 और इस v1 को यहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मिलेगा। तो चलो लेट मी सॉल्व इट। तो E इज इक्वल टू v2 2 बाई 9 u माइनस v1 दैट इज माइनस 7 बाई 9 u बाई u। तो E इज इक्वल टू दैट इज 9, ये 7 प्लस 9 बाई 9 u, 9 बाई 9 u डिवाइड बाई u, दैट इज 1। ओ माई गॉड, oh my god, I assumed already the collision is elastic, इसलिए मुझे E1 मिला। क्वेश्चन में मैंने assume किया, because what formula I have used in the question, I used in the question formulas of elastic collision। जब मैंने फॉर्मूला में इलास्टिक कोलिजन का यूज किया तो आखिर में यही तो मिलना था मुझे कि ये इलास्टिक कोलिजन की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1 है। तो इट वाज अ क्वेश्चन that gave you the answer back as 1 because we have already assumed it is an elastic collision। तो ठीक है, okay, that's okay। Question number 4, a ball of mass m is moving and hits head on another body of mass m prime। A body of mass m hits another body head on another body of mass m prime। What is the relation between m and m prime if the striking ball of mass m loses maximum kinetic energy? Option number 1, m is greater than m dash, b m is less than m prime, c m is equal to m prime, d none of these। तो what should you think is the answer? अगर ये जो बॉडी है it goes and hits another body, so what is the relation between this mass of this body and mass of this body so that the hitting body, ये वाला body जो है, it loses all its kinetic energy, it loses maximum kinetic energy? What is your answer?
यस, अगर आपको याद होगा मैंने कहा अगर ये मास m है, अगर ये अपने ही मास से हिट करेगा, अगर इसका वेलोसिटी u है, दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, hits another, hits head on another body of mass at rest, at rest कर दो इसको, दूसरा बॉडी रेस्ट में है, तो इस बॉडी का क्या मास होना चाहिए ताकि इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए, तो इसका मास जो है वो इसके मास के बराबर होना चाहिए ताकि वो एक्सचेंज करेंगे अपनी वेलोसिटीज। ये वाला जो रेस्ट है जिसका वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू 0 है, ये अपना वेलोसिटी इसको देगा और ये अपना वेलोसिटी इसको देता है, तो इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट में आता है, ये बॉडी रेस्ट में आएगा, ये बॉडी जो है ये रेस्ट में आएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और इसका जो दूसरी जो हिट हुआ बॉडी, इट विल मूव विद द वेलोसिटी u, तो इसका मतलब ये पहला बॉडी जो है ये सारा काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, बिकॉज यू नो इफ द टू बॉडीज हैव द सेम मास दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, ये एक दूसरे से वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं, तो ये बॉडी जब आता है मूव कर रहा है, इट हिट्स दिस बॉडी, तो ये अपना वेलोसिटी इसको देता है, तो इट मूव्स फॉरवर्ड एंड ये खुद रेस्ट में आ जाता है, वजह ये अपना 0 वेलोसिटी इसको देता है तो ये रेस्ट में आ जाता है, तो इसने सारा अपना वेलोसिटी, सारा अपना काइनेटिक एनर्जी खोया। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तभी लॉस होगा व्हेन इट विल हिट द बॉडी ऑफ इट्स ओन मास, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर C. Fifth question. Fifth one. Two blocks are there. It's a block of mass m. It's a block of mass 2m. तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, इट हिट्स दिस ब्लॉक, ये इस ब्लॉक को हिट करता है, ठीक, जब हिट करता है इस ब्लॉक को तो ये खुद रेस्ट में आ जाता है, ये ब्लॉक जो है ये खुद रेस्ट में आ जाता है आफ्टर द कोलिजन, मैं नीचे बनाता हूं आफ्टर द कोलिजन, खुद ये रेस्ट में आ जाता है, इसका वेलोसिटी v1 0 हो जाता है और इसका पता नहीं इसका क्या वेलोसिटी है, 2m का क्या वेलोसिटी है, ठीक, ये खुद रेस्ट में आ जाता है और ये आगे जाकर के वेलोसिटी v हो जाता है आफ्टर द कोलिजन, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन द केस, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन E निकालना है हमें, जरा बताइए E क्या है, ये यहां पर velocity of recede, what is the velocity of recede here, v, चलो v2 कर दो, v2 minus v1, velocity of approach, अच्छा 1 कर दो, what is the velocity of approach, u1 minus 0, क्योंकि ये रेस्ट में है, पहले ये रेस्ट में था, इसका velocity 0, velocity of approach that is u1 minus, okay, u1 minus u2, v2 minus v1, v2 minus v1 वो होगा v2, क्योंकि ये 0 है, क्योंकि ये रेस्ट में आ जाता है, ये रेस्ट में आ जाता है, ये पहला बॉडी रेस्ट में आ जाता है, तो v2 बाय u1, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, जरा ये निकालने के लिए जरा मुझे बताइए मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन PI इज इक्वल टू PF, जरा बताइए कैसे लिखोगे आप, PI क्या है, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज, दैट इज mu1 प्लस दूसरे बॉडी का 0, कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद क्या है, कोलिजन के बाद क्या है, इसका 0 प्लस उसका 2m v2, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, u1 इज इक्वल टू 2v2, ये मुझे मिला, mm कैंसल्स, u1 इज इक्वल टू 2v2, तो अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके बराबर, v2 बाय v1, u1, तो v2 व्हाट इज u1, 2v2 हो गया 1/2, 0.5, 50% इलास्टिक है ये, फिनिश्ड,
फिर से बताता हूं, दिस मास मूव्स फॉरवर्ड विद u1, इट इज एट रेस्ट. After hitting, this body comes to rest and second body moves with v2. We have to find coefficient of restitution. So coefficient of restitution 0.5 mila, that means it is 50% elastic. Sixth question. Sixth question. Sixth question. Okay. Sixth one. ऐसे देखो, ये बॉडी है, इसका मास m1 है और इसका वेलोसिटी समझो u1 है, और ये दूसरा बॉडी है, इसका मास m2 है और वेलोसिटी u2 है. कोलिजन हो गया तो फिर ये अपने अपने वेलोसिटी से मूव करेंगे आफ्टर द कोलिजन. तो दिस बॉडी हैज ए वेलोसिटी ऑफ v1 and this body has a velocity of v2. So we have to find the coefficient of restitution in this case, but kinetic energy will not be conserved. Okay, just a minute. Okay, sixth, these are the two bodies. These are the two bodies. It is mass is m1 and velocity is u1. It is a second body, mass m2, but its velocity u2 is 0. It's at rest. And after they hit each other, they move with velocity v1 and velocity v2. It's at rest. And they move with velocity v1 and v2. We have to find the coefficient of restitution. What is coefficient of restitution? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई निकालना है हमें इस सूरत में. फिर से मैं एक बार बताता हूं, दिस ए बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद u1, इट हिट्स दिस बॉडी हेड ऑन and there's a collision, and after the collision this body moves with velocity v1 and this body moves with velocity v2. तो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, हेड ऑन कोलिजन है इन द सेम स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या फार्मूला है? एज यू ऑल नो, v2 minus v1, that is velocity of receipt, by velocity of approach, that is u1, इसका क्या है 0, that is v2 minus v1 by u1. यह है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बेस फार्मूला. तो अब क्या करें, हमारे पास एक ही तो इक्वेशन है, that is what you call as conservation moment. You can't apply conservation of kinetic energy in this case because the collision is not elastic, because you have to find coefficient of restitution in this case. Okay, देखते हैं. चलो momentum conservation लगाइए. What is momentum conservation? Initial momentum is equal to final momentum after the collision. What is momentum before the collision? ऐसे देखिए, before the collision ये हो गया, after the collision ये हो गया. Before the collision बताइए. m1 u1 plus 0 इसका is equal to final momentum m1 v1 plus m2 v2. राइट? तो यहां पर मैं और एक कंडीशन लगाता हूं, दैट इज, लेट मी सपोज m1 is equal to m2. Both the bodies have the same mass in order to find the coefficient of restitution. अगर सारे बॉडीज का मास सेम है तो ये और ये खत्म हुआ. सो व्हाट इज u1? दैट इज v1 प्लस v2. ये है हमारा जो u1 मिला, तो उसको मैं यहां डालता हूं, इस u1 को यहां डालता हूं, फिर e को निकालता हूं मैं. तो क्या लिखा जाए e के लिए? v2 माइनस v1 डिवाइड बाय इस u1 के लिए v1 प्लस v2. ये मैं ई लिखता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो अब ये किया जाएगा, वो
उल्टा करके किया जा सके, लेकिन मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई ही, सो दैट थिंग्स बिकम वेरी क्लियर टू यू। क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करूंगा मैं, आई विल डू इट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट एवरीबॉडी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से EV1 प्लस EV2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो क्या किया जाए? What should we do? That is, so we got the answer in terms of final velocities and initial velocities. So what's the coefficient of restitution? If तो क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर दिया है तो यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द टू वेलोसिटीज, लेकिन अगर दिया है तो वी कैन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटीज, in terms of final velocities. So we have to find the coefficient of restitution in terms of final velocities. So E equal to V2 minus V1 by V1 plus V2. That is the answer. But from here we can do one more thing. We can find the ratio of velocities V1 by V2 in terms of E. So that we can do. Additional question कर सकते हैं। Coefficient of restitution निकालना है तो यही आंसर है in terms of final velocities V1 and V2। लेकिन अगर हमें रेशियो निकालना हो, कभी कभी मेरे जहन में था, कभी कभी क्या होता है हमें रेशियो भी निकालना पड़ता है in terms of coefficient of restitution। I mean coefficient of restitution अगर दिया है तो what's the ratio of the velocities, या coefficient of restitution को in terms of final velocities निकालना, वो हमने निकाला है। लेकिन अब जरा देखो, I want to find the ratio of the two velocities in terms of coefficient of restitution. That was also a question which was in my mind. Okay, that is EV1 plus EV2 is equal to, okay, that is V2 minus V1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। So V1, ये E यहां से ट्रांसफर करके +1 होगा, ये V2 यहां से कॉमन 1 माइनस E होगा, ऐसे कुछ। ये इधर ले आइए, ये इधर लाइए और कॉमन निकालिए V1। So what is V1 by V2? That is 1 minus E by 1 plus E. Answer. So we did two questions. What we did is that, first of all, we found the coefficient of restitution in terms of final velocities. Later we did it one more additional question. What's the ratio of the two velocities, final velocities, in terms of coefficient of restitution? So this we have done. Seventh question. Seventh one. सेवंथ, यहां से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कुछ। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहां से एक बॉडी ऑफ मास 2 kg जाता है विद वेलोसिटी 2। यहां से और एक बॉडी जा रहा है ऊपर की ओर 3 kg विद वेलोसिटी 4। दोनों बॉडीज यहां पर मिलते हैं यहां और कोलाइस हो जाते हैं, टोटल मास हो जाता है। तो हमें इस टोटल मास का वेलोसिटी निकालना है, और वो क्या एंगल बनाता है विद द एक्स एक्सिस, थीटा भी निकालना है। दैट्स आवर क्वेश्चन। सो टू बॉडीज मेक ए कोलिजन एट द ऑरिजिन, टू बॉडीज shown in the figure make an elastic collision at the origin of coordinate system as shown in the figure. What is the velocity of the combined body? What is the velocity of combined body?
मतलब वेलोसिटी निकालना है, इसका डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी। ये हमारा क्वेश्चन है। ये बॉडी यूं आ रही है, ये बॉडी यूं आ रही है, दोनों यहां कंबाइन हो गए, कोलाइस हो गए, तो एक बॉडी बनाकर उसका वेलोसिटी क्या हो, ये मैंने ऐसे दिखाया। सो अदरवाइज हाउ डू आई नो, बिकॉज इक्वेशंस विल टेल अस इन विच क्वाड्रेंट द वेलोसिटी इज, वी डोंट नो वेदर इट इज दिस इन दिस क्वाड्रेंट और दिस और दिस और दिस, बट इक्वेशंस विल गिव अस द आंसर। सो हाउ टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, तो जरा देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसको, क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। Two bodies coming in these two directions, perpendicular to each other, one going in the y direction, other going in the x direction, they combine and become a coalesced body, a big one. And what is the velocity, combined velocity of that coalesced body, a combined body? वो हमें देखना है. So how to do it? Only one thing, you can use only single equation, that is conservation of momentum. Because it is an absolutely inelastic collision, body एक body हो गया, coalesce हो गया, combine हो गया. तो आप एक ही चीज इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. रिपीटेडली आई टोल्ड यू, इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन यू कैन यूज ओनली द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, सेवंथ, दिस वन, सेवंथ लास्ट वन. अच्छा, क्या किया जाए बताइए, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दीज टू बॉडीज बिफोर द कोलिजन. कोलिजन से पहले इन दो बॉडी का मोमेंटम क्या था, कोलिजन के बाद में देखते हैं, बताइए. चलिए, पी आई इज इक्वल टू पी एफ, ऐसे कुछ वेक्टर लगाया, क्योंकि आई विल यूज सिंगल वन टोटल वेक्टर इक्वेशन. आई विल नॉट कंजर्व द मोमेंटम इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन सेपरेटली, आई विल कंजर्व द टोटल मोमेंट. बोथ विल गिव द सेम आंसर. अगर आप एक्स और वाई मोमेंटम अलग अलग भी कंजर्व करना चाहते हैं वो भी चलेगा. अगर आप टोटल मोमेंटम एक ही बार कंजर्व करोगे सिंगल इक्वेशन से वो भी चलेगा. और सिंगल वेक्टर इक्वेशन जब यूज करोगे दैट विल सेव यू टाइम. मैं आपको बताता हूं. चलिए बताइए पी आई किसके बराबर है, इसका मोमेंटम क्या है, मीटर पर सेकंड. मास इंटू वेलोसिटी, इसका भी मास इंटू वेलोसिटी. व्हाट इज मास? 2. व्हाट इज वेलोसिटी? 2. मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज ओके 2 इंटू 2 हो गया ये मोमेंटम. मगर किस डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, आई डायरेक्शन, ये जे डायरेक्शन, आई साथ में. अगर आई नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, वेक्टर जो लिखा ऊपर. प्लस बताइए इसका मोमेंटम 3 मास इंटू 4, मगर कौन सा डायरेक्शन, जे डायरेक्शन. दिस इज द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन. इसका लिखा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन साथ. अब इसका मास क्या है, दोनों टोटल मास 3 प्लस 2 5, मास का 5 है. फाइनल मोमेंटम जो है वो बॉडी 5 kg का मास है. वेलोसिटी दैट यू डोंट नो, ऐसे कर दो. तो इट इज 4i प्लस 12j इज इक्वल टू 5v. तो v इज इक्वल टू 4i प्लस 12j बाई 5. आंसर, आंसर हो गया डायरेक्ट. अगर आप मैग्नीट्यूड चाहिए दैट इज 1/5 ऐसे ही, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 16 प्लस 144. अगर थीटा चाहिए एंगल, दैट इज एंगल तो इसी वेक्टर से निकलेगा 5 को छोड़ करके, tan इनवर्स दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट. अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना है तो हो गया 12/3, 12/4. अगर y कंपोनेंट के साथ बनाना है तो हो गया 4/12. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3. तो ये थीटा भी निकला tan इनवर्स 3, और ये हमें निकला रूट ऑफ 1/5 रूट ऑफ 16 प्लस 144, वो हुआ 144 प्लस 16 हुआ 0, 6 और 1, रूट ऑफ 160. आंसर straight away, single vector equation you are using and getting the answer. Okay, thank you. And rest of the literature you can download from my app. There are questions on this and we are solving those questions here, but you have to download the literature from the app and you can watch lectures there also. Thank you.